So as we did, there are four main components of salary. When we study salary, it's easy to study it when we divide it into four different components. The first one is the base pay. The second one you wrote was allowances. The third one you wrote was benefits and incentives. And the fourth one was rewards and recognition. Right? Out of these four, we have already done what is base pay. Somebody? Let's do a quick revision. It's been quite some time that we continued the class. So now we'll do a quick revision first and then we'll proceed further. Tell me what is base pay? What is base pay? Ma'am, it's a fixed component of salary. And Ma'am, it contains DNN's allowance and DNN's pay. no. Anyone else? Abhijit? Abhishek? You want to say? Ma'am, basic pay is what it is a part of salary, and it is a fixed part of salary, and the salary is given to employee is 40 to 50% of the salary is a basic pay. 40 to 50% of 40 CTC. Sorry, CTC, and the rest of is other allowances. Which is calculated as a part of base pay, right? Yes, ma'am. I'll do the revision for you. What is basic pay? See, base pay is the fixed. ये जो चारों part आप लिखे हैं component of salary में, पहला the first part is base pay, the second part is allowances, third is incentive and benefits, and the fourth one is rewards and recognitions. Some of them are monetary, some are non-monetary. Okay, so you need to completely have a clear view of which one is monetary and which is non-monetary, and which could be both monetary and at times non-monetary. So base pay जो होता है, this is monetary part of your salary. Okay, this is the financial part of your salary, and base pay is the basic pay. बेसिक पे का क्या मतलब होता है? आपकी सैलरी का कुछ पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, उसी के ऊपर दूसरे अलाउंसेस कैलकुलेट होते हैं. ठीक है, उसी के ऊपर दूसरे अलाउंसेस कैलकुलेट होते हैं, ये पार्ट फिक्स्ड होता है. और जनरली, आई एम जस्ट स्पीकिंग जनरली, दिस इज 40 to 50% ऑफ द बेसिक पे. एट टाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको 60% भी कर सकती है, बट mostly this is 40 to 50% of the basic pay. In the last class we did it, right? I explained this to you with an example of a CTC salary. There were people who were present in the class. Didn't I explain you this with an example? CTC Yes, ma'am. कितना लेके explain किया था? Ma'am, 4 lakh. 4 lakh. अच्छा, 4 lakh से था. तो मान लीजिए कि CTC, अच्छा CTC क्या होता है पहले बताइए. In the last class I explained you what is CTC. Tell me what is CTC. Company to capital. Capital. Write down. Cost to company. Sorry. Write down. CTC is cost to company. CTC is cost to company. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी आपको 3.5 या 5.5 का CTC देती है, इसका मतलब कि उस कंपनी को आपको हायर करने में 3.5 लाख या 5.5 लाख रुपए का पर एनम का खर्च है. समझ आई बात? कि उस
कंपनी को आपको हायर करने में 5.5 लाख या 3.5 लाख अकॉर्डिंगली खर्च करना पड़ रहा है. You are 5.5 lakh cost to a company. अब समझ में आया? समझ आई बात? Yes, ma'am. ओके. तो उस दिन वाला एग्जाम्पल विल रिवाइज इट अगेन, क्योंकि आप लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है बेसिक का. आप ये बताइए 40 to 50% आपने कॉपी में लिख लिया, बट व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? Say for example, a company gives you a CTC of 4 lakh per annum. 4 lakh per annum. पर मंथ की सैलरी निकाल के बताइए कितना होगा? 12 महीने की यानी 1 साल की सैलरी 4 लाख है. 1 महीने की कितनी होगी? Ma'am, 33,000. 33,000, राइट? Hmm. और बेस पे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में, से फॉर एग्जांपल देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन एबीसी, उस ऑर्गेनाइजेशन का बेस पे 40% ऑफ सीटीसी है, तो उसके पर मंथ का बेसिक कितना होगा? निकाल के बताइए, पर मंथ का बेसिक कितना होगा? Tell me, you just calculate. One moment. Ma'am, your mic is off. What is the basic salary per month? कितना कैलकुलेट हुआ? बताइए. You calculated CT. This is so simple. You need to get the concept. This is very simple, but you need to get the concept. What did you write in your copy? आप बढ़ते जा रहे हैं आगे, but you need to understand कि what is basic salary. क्योंकि फिर allowance पढ़ाएंगे तो allowance समझ में नहीं आएगा. Okay? You wrote in your note that basic is 40 to 50%. यानी कुछ organizations 40% भी CTC का basic देती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन 50% भी देती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 55% भी देती है, राइट? ये समझ में आया? Yes, ma'am. Unmute yourself, everyone. I need an answer. Make this an interactive class. Okay. 4 लाख पर एनम का सीटीसी का हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे हैं, है ना? 4 लाख पर एनम. तो पर मंथ की सैलरी कितनी बनी? 33,000. 33,000. और बेसिक सैलरी कितनी हुई पर मंथ की? यू रोट इट 40 to 50%. मैंने कहा कि मान लो कि वो ऑर्गेनाइजेशन तुमको 40% सीटीसी का बेसिक सैलरी देती है, तो 40% 33,000 का कितना होगा? बस वही तो कैलकुलेट करना है. Ma'am, 13,200. बस यही है. दिस विल बी योर बेसिक सैलरी for a CTC of 4 lakh per annum. For a CTC of 4 lakh per annum, an organization giving you 40% of the CTC, basic salary कितनी बनी? 13,200 रुपए. 200. बाकी जितना अलाउंस आप पढ़ेंगे वो सब इसी पे कैलकुलेट होगा, ठीक है? इसी पे बाकी का जितना अलाउंस है वो कैलकुलेट होगा. और ये बेसिक सैलरी जनरली चेंज नहीं होती है जब तक कि आप दूसरे लेवल पे ना चले जाए. अंडरस्टूड? बेसिक सैलरी से जनरली छेड़छाड़ नहीं की जाती है. और जब भी आप सुनेंगे कि कोविड के टाइम पे रिडक्शन हुआ या पे कट्स हुआ, तो वो जनरली पर्क्स एंड बेनिफिट्स काट लिया जाता है. जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन देती है ना, उसको कट किया जाता है, ठीक है? ओके. तो डिड यू राइट अबाउट डियरनेस अलाउंस? Yes, ma'am. डियरनेस अलाउंस लिख चुके हैं आप लोग. क्या होता है डीए? बताइए. Ma'am, it is a component of a salary which was introduced No, after the. don't read the paragraph. You tell me.
shut your copy and tell me what do you remember about DA. DA क्यों होता है? बहुत simple. So I don't want very nuances to dearness allowance. बस क्या होता है ये बताइए. क्यों सैलरी में डाला जाता है? क्या यूज है इसका? राजवी मैम डियरनेस अलाउंस का मैम इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करने के लिए। बस इतना ही सुनना चाहते थे आप. दिस इज द यूज ऑफ डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस क्या होता है? देखिए, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता. महंगाई भत्ता सुना है ना? ये महंगाई भत्ता होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज को दिया जाता है. पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज और पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग, सिर्फ उनकी सैलरी में डीए जो है वो एक कंपोनेंट है. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डीए देने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी 100% तक बढ़ सकती है ना. 150% का हाइक मिल सकता है, 170% का हाइक मिल सकता है. पर क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की या गवर्नमेंट के लोगों की सैलरी इस तरह से बढ़ती है? नहीं बढ़ती है. उनका 3% का फिक्स्ड होता है और अलग से जो बोनस हो या पीआरपी जिसको हम परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कहते हैं, ये सब बढ़ती है तो बढ़ती है. लेकिन इस तरीके से सैलरी हाइक नहीं होता है कि दे गिव यू हाइक ऑफ 150%. 3 लाख है तो 5 लाख सैलरी हो गई अचानक से, 5 लाख है तो 8 लाख सैलरी हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है. तो उनको कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे आप? इन्फ्लेशन से. महंगाई तो बढ़ती जा रही है, मार्केट में बढ़ रही है ना. यस मैम. तो महंगाई से उनको सेव करने के लिए, उनकी सैलरी को प्रोटेक्ट करने के लिए डीए का कंपोनेंट सैलरी में इंट्रोड्यूस किया गया है. ये आज भी इंडिया और बांग्लादेश के सैलरी में एक मेजर कंपोनेंट है. DA is basically to compensate for the inflation, महंगाई जो मार्केट में है उसी के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है. इसको साल में 2 बार गवर्नमेंट रिवाइज करती है. ठीक है, कि महंगाई के हिसाब से 2 बार गवर्नमेंट रिवाइज करती है. किस किस महीने में? एक जनवरी में और एक जुलाई में. ओके, अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है वो जुलाई में रिवाइज किया है. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 17% से बढ़ा के डीए को 28% किया गया. ठीक है, आप डीए को बढ़ाया या घटाया दोनों जा सकता है. गवर्नमेंट चाहे तो डीए को बढ़ा सकती है या घटा सकती है डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन. लेकिन आप बताइए कि कभी भी महंगाई घटी है? घटती है कभी नो महंगाई? मैम. महंगाई तो बढ़ती जाती है. इसीलिए डीए को भी प्रैक्टिकली घटाया कभी जाता नहीं. डीए बढ़ता ही बढ़ता है. ठीक है, जब भी आप लोग यू डोंट मग अप द सेंटेंस. हम जो थोड़ा बहुत हम लिखवाते हैं वो इसलिए लिखवाते हैं ताकि आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड हो. कभी कुछ स्किप करे तो आप खोल के पढ़ सकें. द पैराग्राफ रीड आउट नहीं करना है. यू नीड टू गेट द कॉन्सेप्ट स्ट्रेट कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है. उसके अलावा अगर लिखने को आएगा तो फिर आप उस पर ऐसे भी लिख सकते हैं खुद से. तो डीए का क्या मतलब हुआ? डीए इज डियरनेस अलाउंस. ये महंगाई भत्ता होती है जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज के सैलरी में एक कंपोनेंट है और ये इसलिए ऐड किया जाता है टू काउंटरएक्ट इन्फ्लेशन इन द मार्केट. समझ आ गई बात ना? बेसिक क्लियर हुआ आप लोग का? यस मैम. यस मैम. डियरनेस अलाउंस क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है, अब अलाउंस से स्टार्ट करें. यस मैम. ठीक है, first you write down few things and then I'll explain you. Write down allowance. Allowances. These are over and above the basic pay. These are over and above the basic pay and are allowed in the organization for a purpose.
in the organization for a purpose. During the course of the regular duty. During the course of the regular duty. Allowances differ from organization to organization. Allowances differ from company to company, yeah, or organization to organization, according to their policies. According to their policies. Some most common form of allowances are some most common forms of allowances are HRA, house rent allowance, CCA, city compensatory allowance, city CITY, city compensatory allowance, medical allowance, medical allowance, food allowance, transport allowance, leave travel allowance LTA, leave travel allowance, etc. etc. Write down about HRA first. I'll explain it to you later. You just write down first. HRA, house rent allowance. A house rent allowance is that component of salary a house rent allowance is that component of salary which is paid to employees for meeting the cost of which is paid to employees for meeting the cost of renting a home. For meeting the cost of renting a home. It is different for different cities. It is different for different cities. Okay. House rent allowance. Next you write transport allowance or conveyance allowance. Oblique transport allowance. फिर oblique डालो. Oblique conveyance allowance. Both are the same thing. Conveyance allowance or transport allowance. Right. It is offered to employees to compensate. It is offered to employees
to compensate for their travel expense to and from It is offered to employees to compensate for their travel expense to and from their residence and workplace to and from their residence and workplace. Done? Next you write LTA, leave travel allowance. LTA, leave travel allowance. It is offered by employers to their employees. It is offered by employers to their employees to cover their expenses when the employee is on leave from work. It covers only the domestic travel and the mode of travel be it covers only the domestic travel and the mode of travel be air, rail, air, rail or public transport. The employees need to write down. The employees need to submit the bills for claiming it. The employees need to submit the bills for claiming it. Next you write medical allowance. This is an allowance paid to the employees of an organization This is an allowance paid to the employees of the organization to meet their medical expenditure irrespective of whether they submit the bills to substantiate the expenditure or not. Whether they submit the bills to substantiate the expenditure or not.
Done writing? Everyone? Rohit? Yes, ma'am. Done writing? Next you write, there is a difference between medical allowance and medical reimbursement. Then you write, however, in medical reimbursement, however, in medical reimbursement, the payment is made to employees However, in medical reimbursement, the payment is made to employees against specific medical bills. Against specific medical bills submitted by them submitted by them subject to entitlement. Subject to entitlement. Done? Then you write city compensatory allowance. Okay, you've written this education allowance as a part of it. Then you right? The various other forms of allowances are right, books and periodicals allowances. Books and periodicals allowances. जो monthly magazine वगैरह आती है ना, वो खरीदने के लिए जब अलाउंस कंपनी आपको पैसा देती है, that is called books and periodicals allowances. Comma, uniform allowance. Right. Uniform allowance. Comma, entertainment allowance. Comma, meal allowance. Comma, CCA allowance. CCA, city compensatory allowance. City compensatory allowance. Comma, LTA, leave travel allowance. LTA, leave travel allowance. Comma, hill allowance. Hill, hill allowance, etc. Okay? Done writing? Rohit? Done writing? Yes, ma'am. Now, we are studying allowances. I made you write down because at least you have a written record of what is all there in the allowance. You can turn pages when you forget. But I will still request you to get a conceptually clear, thoughts of examples of what exactly allowances are. क्यों डाला जाता है? सैलरी का जो भी कंपोनेंट है वो सैलरी में डालने का एक कारण होता है, ऐसे ही सैलरी में नहीं डाला जाता। जब कंपनी को कट करना होता है आपकी सैलरी, तो वो कोई एक पार्ट को कट करती है, सबको नहीं, इसका भी कारण होता है। When you are studying payroll management, आपको थोड़ा टेक्निकली इसको पढ़ना होगा, and since you are BCom 4th semester, you should pay more attention to it. Okay? See,
अलाउंस क्या होता है? Allowances are something which are allowed over and above the basic salary. आपको जितना भी अलाउंस दिया जाता है वो बेसिक का एक सर्टेन पार्ट होता है, ठीक है? बेसिक सैलरी का एक सर्टेन पार्ट होता है, उतना आपका अलाउंस को स्प्लिट किया जाता है, बनाया जाता है कि इस बेसिक सैलरी को इतना अलाउंस दिया जाए। अलाउंस का रूट वर्ड क्या होता है? अलाउ, मतलब समथिंग विच इज अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्पस। किसी पर्पस की वजह से समथिंग व्हेन इट इज अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज अलाउंसेस। ओके, आपको किसी पर्पस से सैलरी को कॉम्पेंसेट करने के लिए उसको दिया जाता है। जैसे द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अलाउंस आपने क्या डाला? हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है? हाउस रेंट अलाउंस क्यों दिया जाता है बताइए? क्या सोच सकते हैं आप? व्हाट कैन यू थिंक ऑफ द रीजन बिहाइंड मेकिंग एचआरए एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी? Tell me, this is so simple. You don't need to give a very technical answer. House rent allowance क्यों दिया जाएगा सैलरी में? मैम जो भी एम्प्लॉय को हाउस प्रोवाइड किया जाता है उसके रिगार्डिंग में। और हाउस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो सबको हाउस तो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। मैम कैन आई? हाँ, आंसर अर्पित। मैम जैसे कोई शहर बहुत महंगा है, जैसे मान लीजिए मुंबई, और वहाँ पे मैम किसी एम्प्लॉय का सैलरी कम है और वहाँ पे रेंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनको दिया जाता है कि उनका मैम हेल्प हो सके। ये बताया इस चीज का आंसर कि हाउस रेंट अलाउंस अलग अलग क्यों होता है। हाउस रेंट अलाउंस बहुत सिंपल है। हाउस रेंट, हाउस को रेंट करने के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको घर की भी जरूरत होगी रहने के लिए, तो उसको रेंट करने के लिए कंपनी ये सोचती है कि आपको घर के लिए पैसा चाहिए, तो ये अलाउंस घर के लिए दिया जाता है, ठीक है? हाउस रेंट अलाउंस के बारे में सबसे खासियत ये है कि हाल अलाउंस के नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों है सैलरी, कोई हिडन चीज नहीं है। नाम पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अलाउंस क्यों दिया जाता है, ठीक है? हाउस रेंट अलाउंस क्यों दिया जाता है? हाउस अकोमोडेशन को एडजस्ट करने के लिए। अब ये बताइए जो अर्पित ने बताया कि क्या एक 2 BHK हाउस की कीमत मुंबई में वही है जो पटना में है? नो मैम, नहीं है। किसी और शहर में वही होगी जो कि पटना में होगी। अगर मेट्रोस की बात करें, बैंगलोर या दिल्ली, नहीं होगी। दिस इज द रीजन हाउस रेंट अलाउंस एक ही कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जो अलग अलग शहर में रहते हैं उनको अलग अलग देती है। समझ में आया? जैसे पटना में अगर किसी का हाउस रेंट अलाउंस 10,000 दिया जा रहा है तो किसी बहुत छोटे से जगह पे उसको घटा दिया जाएगा, किसी बड़े से जगह पे उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? इसके लिए, इस कन्वीनियंस के लिए, हाउस रेंट अलाउंस की कन्वीनियंस के लिए we have divided cities. The companies have division of cities like city X, city Y, city Z, ठीक है? और ये cities कैसे डिफर करती है? अपने अपने पॉपुलेशन से। Population. हाँ, पॉपुलेशन से। किसी में 5 लाख से कम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना मैट्रिक्स हो कि इस सिटी का पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी कम है, जहाँ बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, उसको अकोमोडेट करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है और अलग दिया जाता है, ठीक है? लीव ट्रैवल अलाउंस लिखा है आपने, क्या सोच सकते हैं आपके? व्हाट कुड बी लीव ट्रैवल अलाउंस? टेल मी। मैंने आपको बताया ना कि अलाउंस का नाम आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सोचिए और बताइए क्या हो सकता है ये। मैम जो भी वो एम्प्लॉय के लिए लीव डेज होता है और फिर भी उस लीव से वो लीव नहीं लेता है और एडिशनल वर्क भी करता हो तो उस केस में भी ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल का क्या मतलब है? ट्रैवल मीन्स मतलब उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन
उस कंपनी के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाना। लीव ट्रैवल अलाउंस को किसी और को गेस करना है? अर्पित, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम। ट्रैवल अलाउंस क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, नाम पढ़िए, लीव लेके ट्रैवल करने के लिए जो अलाउंस आपको कंपनी देती है उसको कहते हैं हम लीव ट्रैवल अलाउंस। ठीक है? Have you ever heard of your parents or someone who has been in government sector saying कि ऑफिस की तरफ से LTC मिला है घूमने के लिए? यस मैम। सुना है कभी? क्या होता है वो यही होता है। उसमें क्या होता है कि आप लीव लेंगे, आपको ऑफिस लीव देगी, and then on that leave you travel, the salaried employee will travel with his family to places, to different places, और उस ट्रैवल के एक्सपेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो अलाउंस कंपनी या ऑफिस देती है उसको कहते हैं हम लीव ट्रैवल अलाउंस। ठीक है? आई एम मिसिंग आउट ऑन फिगर, लेकिन शायद ये साल में ये 4 साल में 2 बार दिया जाता है, लेकिन अभी 1 साल हुआ है कि नहीं, आई हैव टू चेक इट आउट, लेकिन ऐसे साल में 2 बार दिया जाता है। ओके? अब आप ये सोच सकते हैं कि कैन यू जस्ट थिंक अबाउट इट, सी आई गॉट दिस आंसर फ्रॉम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, दे सेड इट करेक्टली, नाउ आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन। अब आप लोग सोच के बताइए कि लीव ट्रैवल अलाउंस यानी कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को ये परमिट करती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को की ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, अगर LTC देती हैं आपको तो इसका क्या बेनिफिट होगा? अगर आपको किसी चीज का अलाउंस मिलता है तो ऑब्वियसली वो कंपनी कुछ सोच के देती है, तो इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको? आप सोच सकते हैं, एज एन एम्प्लॉयर सोच के बताइए, एज एन एम्प्लॉय सोच के बताइए, एंड एज गवर्नमेंट भी सोच के बताइए। सिंस दिस इज मीन्स बाय गवर्नमेंट to give you LTC, LTA, what could be the possible effects? Take 2 minutes and think about it. You think as an employee, you think as an employer, and you think as a government. Abhijit has given his answer. Okay, for what he has written something else. Stress relief for employer. अभिजीत, अगर एम्प्लॉय काम छोड़ करके चला जाएगा लीव लेकर के घूमने के लिए, तो वो उससे स्ट्रेस रिलीव होगा एम्प्लॉयर का कि एम्प्लॉय का होगा? चलो, ऑल ऑफ यू थिंक फॉर 2 minutes. आई एम गिविंग यू 2 minutes. थिंक अबाउट इट. I got this answer from BCom second semester. To our fourth semester people, बताइए. Ma'am, please repeat the question again. लीव ट्रैवल अलाउंस क्या होता है? लीव ट्रैवल अलाउंस का मतलब होता है कि देयर इज अ प्रोविजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि आप लीव लीजिए, ट्रैवल कीजिए, ठीक है, यू गो ऑन वेकेशंस विद योर फैमिली, और उस ट्रैवल के एक्सपेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो अलाउंस कंपनी देती है दैट इज कॉल्ड लीव ट्रैवल अलाउंस। अब आपको घूमने के लिए अगर पैसा मिल रहा है और छुट्टी मिल रही है तो कंपनी भी कुछ सोच समझ के दी होगी, गवर्नमेंट ने भी कुछ सोचा होगा इसके बारे में। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, और एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। You will come with this answer in the next class. Okay? ये बहुत बेसिक चीज है, आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट भी आप ये बात सोच सकते हैं।